ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗੰਤ ਅਤੁਲੈ ਜਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਜੇਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤੇਹਾ ਹੂੰ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਪਾਨਾ ਲਪਾ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਂਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ਕੀ सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਲਗਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹਿੱਸਾ ਮਤ ਦਿਓ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੇ ਅਰਾਧਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀਜੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਹਮ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ 400 ਸਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸ਼ਲੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 20ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹੋਮੇ ਦਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਣ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵੋ ਮੁਕਤ ਨਰ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਮੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੀ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਮੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਭਾਵਕ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅੱਖ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲੱਥਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੂ ਤੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਤੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਰੱਬ ਰਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੇ ਮਨ ਸਦਾ ਪਿਆਈ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ
तो बंदे नूं अपना आप ही दीदा मैं ही हाँ सब कुछ, बाकी तो कुछ भी नहीं गा, अगला कुछ दीदा ही नहीं गा। दरअसल वो होमे दे विच अन्ना हो जाता। ये होमे की माया की पड़त चढ़ गई कि माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुने रोलक झोला। जदों निरंकारी शब्द की ये असीस मिली, फिर सारे पासे वो परमात्मा ही दिखना है कि जय जय पेखू तै हजू, जय प्राणी होमे तजी करता राम पछाण। ते नाल दी नाल कही कहो नानक वो मुक्त नर ए मन साची मान। ओ प्राणी जिन्हें होमे छड्डी आ, हंकार छड्डिया, ये सच्ची गल मन्नियो कि वो मुक्त है, वो मुक्त है, वो जींदा ही मुक्त है। मरिया मुक्ति नहीं, मरिया ते जन्म ही मिलना है, मरिया मुक्ति नहीं मिलनी। जींदे जी इन्हां विकारां तो मुक्त होना है। तो सतगुरु जी ने फिर 20वें श्लोक दे विच जिहड़ी गल कीती, भै नासन दुर्मत हरन कल में हर को नाम, निस दिन जो नानक भजै सफल होए तै काम। कहने लगे दरअसल जिसने उस परमात्मा नू पछाणिया होमे तजी, ते दरअसल साडे अंदर बड़े तरह के डर ने, भै ने, और सब तो वड्डा भै ते मौत का हुंदा है। फिर इसे ढंग दे नाल सानू होर भी बड़े भै ने, दुख सुख का भै, रोटी रोजी का भै, इज्जत मान का भै, क्योंकि सराफत बंदे वाले ने इज्जत हुंदी आ, ते जिहड़ा मूर्ख होवे उहनूं की इज्जत ना मतलब। ते सतगुरु जी कहने लगे कि ये बड़े डर ने साडे अंदर, तरह तरह के डर ने। सतगुरु कहने लगे भै नासन दुरमत हरण। दुरमत भैड़ी मत के पिछे जिहड़े लोग लगे ने, विकारां दे विच काम क्रोध लोभ मोह हंकार निंदिया चुगली ईर्खा वकीली जैलसी, बहुत तरह के तृष्णा अत्याद, भैड़ी मत मन मत। कहने लगे एक ते सजना तेरा अंदर दा डर जिहड़ा आ ये खत्म हो जाएगा। भै नासन नाल दे नाल दुरमत हरण, तेरी दुरमत जिहड़ी भैड़ी मत आ, जिसनों धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कवन कुमत भी किया आ, भैड़ी मत दुरमत। ते बाबा जी कहते ने मन रे कमल कमत तै लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत न कीनी। भाई तेरे अंदर ते डर, तेरी भैड़ी मत वो हरन वाला आ कौन? कल में इस कल युग दे विच कले कलेश दे समय च आ जिहड़ा समा चल रहा, हर को नाम कौन हरन वाला? परमात्मा दा नाम जिहड़ा भी लवेगा। गुरमुखो जिन्हां ने परमात्मा दा नाम लिया है ना, उन्हां दी भैड़ी मत दा नाश हो गया। फॉर एग्जाम्पल इतिहास दे विचों एक नहीं अनेक ने, भावें वो सज्जन ठग दी कह लो, भावें वो भूमीए चोर दी कह लो, बेशक भावें इहदे तो पहला बाल्मीक दी कह लो। बाल्मीक भी की करदा सी? लुटदा सी, लोकां नूं मारदा सी, डाके मारदा सी, चोरियां करदा सी, माड़े काम है। पर जदों महापुरुष मिले, साधु मिले, जिन्हां ने नाम की असीस दिती, ये भैड़ी मत नाश हो गई, सीधे रस्ते ते लग गया। ये परमात्मा के नाम की वडियाई है कि भै नासन दुरमत हरण कल में हर को नाम। परमात्मा के नाम का सदका बड़ा कुछ मिल जाएगा, जिहड़ा परमात्मा के नाम के नाल जुड़ गया। इत्थे बस नहीं,
सतगुरु जी कहन लगे, निस दिन जो नानक भजे सफल होए तै काम। निस दिन, रात दिन, निस माने रात, दिन माने दिन, दिन रात हर वक्त। जो नानक भजे, जो माने जेड़ा, हुण इत्थे जरूरी नहीं कि एक हथ च नाम है दूजे च नहीं, जेड़ा भी भजे उन्होंने भजना, बंदगी करनी, उहदा सिमरन करना, भजन करना, सफल होए ते काम। संसार दे भी ते निरंकार दे भी, उहदे सारे कारज रब जी आप सवारन वाला है। बहाना जरूर बनेगा किसी का भी जरिया बनेगा, पर विच वो आप खलो जाता। संतां के कारज आप खलोवा, वो गुरमुखां दे, संतां दे। और संत कौन है? जिहड़ा नाम जपदा। सच्ची गल है, सास ग्रास ना विसरे हरनामा मन मंत, ओहो ही संत है। संत कोई चोले वाला ही नहीं, एक पैंट शर्ट दे विच भी संत हो सकता है। ये तो बाहर का लिबास है, वो तो अंदर आत्मा की गल है। तो गुरु कृपा कर कहने लगे, निस दिन जो नानक भजे सफल होए तै काम। अमूमन असी शब्द पढ़ते भी हैं, और खास करके दरबार साहब आरती तो बाद पढ़िया ही जाता है। फिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। संसार दे भी निरंकार दे भी ताडे सारे कारज परमेश्वर आप सवारन वाला। सफल होए तै काम, उन्हां दे काम सारे सफल हो जाते हैं। विच करता पुरख खलोवा, बाल न विंगा होवा। उन्हां दियां ये बेनतियां, कीता लोड़िए काम सो हर पै आखीए, कारज दिओ सवार सतगुर सच साखीए, संतां संग निधान अमृत चाखीए। अगले श्लोक दे विच फिर नाल दे नाल की कह रहे हैं, निस दिन जपना, भै तो दूर होना, भैड़ी मत तो दूर होना। पर जपना किवें आ? सवाल है। जिवें दवा हुंदी है ना, भाई फलाना रोग है, कोई भी रोग है, उहदी आ ते दवा आ, ते खानी किवें आ? सवेरे शाम कितना खानी आ अतियाद। फिर परहेज की करना आ? ये सारिया चीज़ां चलदियां ने। हुण रोग किहड़ा? होमे दा, भैड़ी मत दा, संसार रोगी, नामदारू। ये संसारी जीव आप रोगी हाँ। काम दे, क्रोध दे, लोभ दे, मोह दे, ये विषय विकारां दे रोगी है। संसार रोगी, नामदारू। लेकिन ये दारू जिहड़ी है, ये दवा लैनी किवें आ? सतगुरु जी ने फिर गल दसी। 21वें श्लोक दे विच सतगुरु जी अगे बख्शिश करन लगे, जेहबा गुण गोबिंद भजो, करण सुनो हर नाम, कहो नानक सुन रे मना, परे न जम के धाम। सतगुरु जी कहने लगे 21वें श्लोक च, अध्यात्मक मार्ग दे पंध ते सब तो वड्डा काम जेबा दा ही है कि इस जीबा दे नाल परमेश्वर दा नाम जप भाई। जेहबा गुण गोबिंद भजो, ते पहले श्लोक च भी हो गया सी, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ के। अक्सर सानू हुक्मनामे दे विच भी, नितनेम दीयां बाणियां दे विच भी ये रसना दी गल सामने आउंदी है। जिवें इस रसना दे नाल नाम जपना, ये रसना तो अनरस राच रही। फिर बार बार ये गल कही है कि भाई जेबा दे नाल, जिवें जपजी साहब दे विच गल के, एक दूजी बहु लख होवे लख बीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਜੀਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਆ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਕਮਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨ ਕਿਨਹੀ। ਗੱਲ ਜੀਬਾ ਦੀ, ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਰਨ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਦਾ, ਕਿ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਨਾ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ, ਸੁਣਨੀ ਸੁਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗੇ ਪਾਈਏ ਠਾਓ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਥ ਦੇ, ਜਗ ਮੇਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਬਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਇੱਕ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣਾ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਰਸਨਾ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਆ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੀਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਜਿਹਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨਾ ਸੁਣ। ਕੀ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਪਰੇ ਨਾ ਜਮ ਕੇ ਧਾਮ। ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਧਾਮ, ਜਮ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੌਤ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਮੌਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ, ਉਹ ਜੰਮ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜੰਮ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪੰਧ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਪਰੇ ਨਾ ਜਮ ਕੇ ਧਾਮ। ਉਹ ਜਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਜਮਾ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ 22ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਮਤਾ ਤਜੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੇ, ਔਰ ਨ ਲੈ ਤੇ ਉਧਾਰ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਮਮਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਪਕੜ, ਕਬਜ਼ਾਗਿਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਲਾਦ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗ ਟੋਡੀ,
कि दात्या कृपा करी, ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दुख और आहंग रोग ए तन ते सगल दूर कीन। और इत्थे नाल दे नाल बेनती, गुरमुखो ये विषय विकार भी अंदर आ ते नाम भी अंदर आ। सतगुरु जी बख्शिश कर दे कि विषय विकार भी साडे अंदर आ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस दे ही अंदर आ, ते परमेश्वर दा नौनिध नाम जिहड़ा वो भी इस दे अंदर ही आ। माफ करना, ना ते विकार बाहरों आउंदे आ ते ना नाम बाहरों आउंदा, सारा कुछ अंदरों ही उपजदा है। ते सतगुरु जी कहने लगे जिसने फिर नाम जपिया सुभावक वो पहला मैं मेरी छड़ देंदा कब्जा गिरे, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ भी खत्म हो जाता, ਉਹਦੇ मोह भी खत्म हो जाता, ਉਹ हंकार भी खत्म हो जाता। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ खत्म हो गई जिस बंदे चों, सतगुरु कहने लगे कहो नानक आपन तरे। पहली गल तो आप तरदा ही तरदा आ, इस संसार सागर तो पार हो जाता है, केवल आप ही पार नहीं होंदा। औरन लेत उधार, होरना का भी आसरा बन जाता। जिवें आपां जपजी साहिब दे विच पढ़दे, जदों 4 पौड़ियां सुने दियां ते 4 ही फिर मन्ने दियां। पहला सुने दियां सुनियां, फिर मन्ने दियां सुनियां, ते मन्ने दी जिहड़ी चौथी पौड़ी आ बड़ी बख्शिश की सतगुरु कहने लगे मन्ने पावे मोख द्वार। जिसने परमेश्वर के नाम नू सुन के मन्निया जपिया, पहली गल वो बंदे दी मुक्ति का द्वार मिल जाता, मुक्त हो जाता विकारां तो भी, जन्म मरण तो भी। मन्ने पावे मोख द्वार, मन्ने परवार साधार। वो आप भी ते अपने परिवार का साधार भी बन जाता। साखीकारां ने साखी दिती आ भगत प्रहलाद दी। हुण वेखिया जावे, भावें हरनाक्ष ने बंदगी करके वर मंगया, ते माफ करना तुसी मंग जो मर्जी लो, कि जो बंदगी करोगे तुहानू मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो मांगे ठाकुर अपने ते, बंदगी कीती ते वर मंगया कि मैं मरा ना, और ऐसे वर मांग ले मैं अंदर ना बाहर, ना उत्ते ना थले, ना इधरों ना उधरों, सारा कुछ, ना दिन ना रात। पर परमेश्वर दे ते कौतक ही न्यारे ने। चलो वर भी दे देते, जो तू मंगया मिल गया। और आ मरण का ही एक डर हुंदा, वो डर ते लिया लथ गया, फिर बद फैलियां, जो कुछ है मैं आ। उसे घर दे विच प्रहलाद होया जिहड़ा नाम जपण वाला। ते हरनाक्ष ने जो तसीहे दिते, दुख दिता प्रहलाद नूं, ओदा फिर रिजल्ट भी लेना पिया, भावें वार मंग ले सी। फिर नर सिंह दे रूप दे विच थंब उपाड़ के भी, ना अंदर सी ना बाहर सी, ना हथियार ना मारिया, ना जानवर ने मारिया, ना मर्द ने मारिया। नर सिंह, नर भी है ते सिंह भी है, शेर पट ते रख के चीरो चीर करता सी हंकारी में। लेकिन जदों आंदे प्रहलाद गया मर के संसारिक तौर ते शरीरक विछोड़ा, ते धर्मराज भी उठ के बह गया सी, क्योंकि भगतां वास्ते जिन्हां ने नाम जपया रे रे दरगे कहे ना कोऊ, आओ बैठ आदर शुभ देऊ। ते भगत प्रहलाद नूं कहण लगे कि मंग की मंगना भाई। तो उन्हें कहा कि मेरा पिता कित्थे आ? कहंदे ओह ते नरकां च आ। क्यों? कहंदे उन्हें माड़े कर्म कीते सी, जैसे ओहदे कर्म सी। कहंदा फिर इस तरह करो, मैनू भी उत्थे कर दो, जी मेरा प्यो उत्थे आ ते मैनू भी उत्थे भेज दो। ये साखीकार के मुताबिक कहने लगे कि धर्मराज वो निरंकार वालों आदेश होया भगत प्रहलाद नूं
तू एक कुल दी कि तू तेरियां 21 कुल्लां तारियां। और ये सच आ, मन्ने पावे मोख द्वार मन्ने परवारे साधार। इत्थे भी सतगुरु कह रहे हैं सब तो पहला कहो नानक आपन तरे, वो आप तरदा औरन लेत उधार, दूसरियां दा आधार बन जांदा आ, दूसरियां दा सहारा बन जांदा नाम जपण वाला। नाम दी एडी वड्डी बरकत। इसे ढंग दे नाल अगला श्लोक जिहड़ा 23वां, जिहदे विच सतगुरु जी कहण लगे, ये भाई फिर चेता दवाया, क्योंकि असीं संसार दे विच बड़े गलतान होए पए आ। कई वार असीं विकारां दे विच हुंदिआं भी नहीं मनदे कि असीं विकारी सली, माड़े कर्म करदिआं भी नहीं मनदे। इतनी बुद्धि भ्रिष्ट होई है। सतगुरु चेता दवा रहे ने इस संसार का, जिस संसार नाल असीं लोकां ने मोह पाया। सतगुरु जी की कहण लगे अगे 23वें श्लोक च, जो सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान, इनमें किछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। कहने लगे हो भलिया जिवें सुपने च असीं बड़ा कुछ वेखदे हैं, चंगा भी ते माड़ा भी, पर वो हुंदा नहीं गा। भावें कई बार ते अपनी मौत ही वेख लईदी आ, किसी दा विआह वेख लईदा आ, किसी सज्जन मित्र नूं मिलदिआं वेख लईदा आ, बहुत कुछ वेखीदा सुपने दे विच। ये सुपने दी दुनिया, ते जदों सुपना टुटदा उठ के वेखीदा ते कुछ भी नहीं। और ये सच है, संसार भी इसे ने आई है। संसार दे विच भी असीं बड़ा कुछ वेख रहे हैं, दुख भी सुख भी, चंगा भी माड़ा भी, रस कस भी, पर सच्चाई नहीं है। सतगुरु जी कहने लगे, जो सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान। जिवें सुपने ते वेखियां चीज़ां सारियां भावें चंगियां ने भावें माड़ियां ने, झूठियां है ना, ये संसार भी झूठा जो। इवें जग नूं समझ। नाल ही गल कहण लगे, इनमें किछ साचो नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई सच्ची गल नहीं गी जिहड़ी कह रहे जो। नानक बिन भगवान, परमात्मा तो बिना, भगवान मीनस परमात्मा, रब जिन्हों आपां वाहिगुरू कहिए, ਉਹਦੇ तो बिना कोई भी सच्चा नहीं गा। हुण नाम दी तां सारा झगड़ा आ। हरनाक्ष कादे मारे पचिया, मेरा ना होवे। कंस ने की कीता, मेरा ना होवे। होर भी राजे महाराजे दुनिया ते आए, मेरा ना होवे। अज साडे समाज च परिवार च मेरे नां दी ते सारी लड़ाई है। इत्थों तक कि पति पत्नी दी भी लड़ाई, वो कहंदी मेरा ना होवे, वो कहंदी मेरा ना होवे। सस नौ दी लड़ाई, नां दी ते गल है। आ काम ओने कीते सी, आ काम ओने कीते सी, नां दी ते लड़ाई है। और लड़ाई कादी है कि मेरी जय जयकार होवे, अपने आप नूं चंगा साबित करना, ये नाम दी लड़ाई है। परिवारां च, समाज च, कौम च, देश च, ये सारी नाम दी लड़ाई है। पर साडे सारे नां जिहड़े झूठे ने, क्योंकि असीं आप झूठे हैं, सदैव रहण वाले ने। सच्चा परमात्मा जिहदा आपां जपजी साहिब दे विच भी होर अगाए बगाए भी ये गल नूं पढ़दे हैं कि वो परमात्मा आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसे भी सच। जदों किते नाम दी गल आउंदी आ ते खास करके आनंद साहिब दे अंदर आपां हुण भी सरवण करना कि साचा नाम मेरा आधारो। नाम ते आधार बने। कई बार अपने नाम नूं आधार बना लईदा आ, झूठे नामां नूं। जे मेरा आधार भी बने सच्चा नाम, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां। ते सच्चा नाम किहदा है गुरमुखो? एक परमात्मा दा, बाकी सब झूठ है। ते सतगुरु जी कहन लगे, जो सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान, इनमें किछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। परमात्मा तो बिना सब कुछ
झूठ है, झूठ है, झूठ है। अज दी इतनी विचार प्रवान 23 श्लोक तक। अगली जिहड़ी विचार आ 24 श्लोक पढ़ के आपां समाप्ति करिए। विचार कल नूं सांझी करांगे। जिस दे विच सतगुर कहंदे निस दिन माया कारण प्राणी डोलत नीत, ओटन में नानक कोऊ नारायण जय चीत। गलतियां भुलां दी खिमा, गुरफतेह दी सांझ भाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की